کی سوچ اس دین کے تابع نہ ہو جائے جس کو میں لے کر کے آیا ہوں۔ ایک اور ارشاد عرض کیا تھا خطبے میں، لا تزال طائفۃ من امتی علی الحق۔ یہ صحابہ کا زمانہ تھا جن امیوں کو قرآن نے کہا اولئک هم المؤمنون حقا، یہ پکے مومن ہیں، اولئک هم الصادقون، یہ بالکل سچے ہیں، اولئک هم المفلحون، یہ بالکل کامیاب ہونے والے ہیں۔ ان کی صداقت میں، ان کے ایمان میں، ان کی کامیابی میں اگر کوئی شک کرے گا اس کے ایمان میں شک۔ تو کیا یہ سلسلہ اس طرح دین کے ساتھ ڈٹ جانے کا اور دین پر اپنے آپ کو قربان کرنے کا یہ انہی پر ختم ہو جائے گا؟ فرمایا نہیں، قیامت تک کھڑے کروں گا ان کو۔ میں رب کائنات کہہ رہا ہوں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، میں نے قرآن کو نازل کیا ہے اور میں اس کی حفاظت کروں گا۔ ربا کیسے حفاظت کرے گا؟ فرمایا میرے سارے کام اسباب کے تحت ہوتے ہیں، اس کے الفاظ کی حفاظت کے لیے قاریوں کو پیدا کروں گا، اس کو یاد رکھنے کے لیے حافظوں کو پیدا کروں گا، اس کے معنی کے لیے مفسرین کو پیدا کروں گا، اس کی تشریح کے لیے محدثین کو پیدا کروں گا، یہاں تک کہ جب دجال اکبر آئے گا اس وقت بھی وہ طبقہ ہوگا جو صحیح طور پر سنتوں پر قائم ہوگا اور اس حدیث کا ترجمان ہوگا کہ اس کو عضو علیہا بالنواجذ، اس دین کو دانتوں سے پکڑ کر رکھو، کوئی تم سے چھین نہ لے۔ یہ 13 صدی گزر چکی ہے، اب تری کا دور ہے، پوری دنیا کے اوپر گورو کا پرچم لہرا رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری حکومت میں کبھی سورج نہیں ڈوبتا ہے۔ اس وقت میں پروردگار نے ایک طائفہ منصورہ کو کھڑا کیا، ایک گروہ کو کھڑا کیا، الفاظ بھی نہیں، وقت بھی نہیں، میں ادھار لیتا ہوں سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ سے۔ اس نے کہا جب میں اس طائفہ پر غور کرتا ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ صحابہ کی روحوں کا ایک قافلہ جا رہا تھا، ان روحوں میں سے کچھ کو روک کے رکھ لیا گیا اور کہا ان کو 13 صدیوں کے بعد پیدا کروں گا، اس وقت ان کی ضرورت ہوگی، اس وقت یہ پہاڑ بن کر کے کھڑے ہوں گے، کوئی گورو کے مقابلے میں کھڑا ہوگا اور اس کو وہاں گاڑ دے گا جہاں سے وہ اٹھا ہوگا، وہ فقیر درویش کھڑا ہوگا اور قرآن کی آیت کا تفسیر کرے گا، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کر لے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ جب گورے کہیں گے کہ جب جس کے پاس کھیت ہوگا اس کو روٹی ملے گی، جس کے پاس بھینس ہوگی اس کو دودھ ملے گا، جس کے پاس باغ ہوگا اس کو پھل ملیں گے، اس وقت میں وہ درویش اعلان کرے گا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے مصیبتوں سے نکلنے کے راستے بنائے گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو وہ دے گا جس کا اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ وہ درویش اٹھا، اس نے سب سے پہلے دارالعلوم کا بنیاد رکھی اور اس کے 8 اصول بنائے۔ پہلا اصول یہ بنایا یہ ادارہ اللہ کے بھروسے پر چلے گا تاکہ انسانوں کو بتایا جائے کہ انبیاء کرام یہی سبق پڑھا کر گئے تھے، لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں جس کو وہ دے اس سے کوئی لے نہیں سکتا، جس کو وہ نہ دے اس کو کوئی دے نہیں سکتا۔ یہ طائفہ اٹھا، اس نے سنتوں کو سینے سے لگایا اور دانتوں سے پکڑا، واللہ دانتوں سے پکڑا۔ وہ مجدد الفسانی جس نے ایک انقلاب برپا کیا 1000 سال کے بعد، کیا اہمیت تھی اس کے نزدیک سنتوں کو پکڑنے کی۔ ایک مرید سے کہا کہ ایک آدمی ساری رات کھڑا رہتا ہے اور نفلیں پڑھتا ہے، فرمایا رب کعبہ کی قسم اس کا مقام نہیں پا سکے گا جو دوپہر کو تھوڑی دیر سنت سمجھ کر کے سو جاتا ہے اور قیلولہ کرتا ہے۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر، اکابرین امت، قاسم العلوم والخیرات علامہ قاسم نانوتوی، حضرت مولانا محمود الحسن گنگوہی، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی، علماء حق علماء دیوبند، علماء حق علماء دیوبند، تنظیم علماء اہل سنت والجماعت، وزیر قوم و ملت حضرت مولانا غلام قادری صاحب، نعرہ تکبیر، شان رسالت۔ کھڑا ہوا، یہ طائفہ منصورہ کھڑا کیا گیا۔ میں نہیں تفصیل میں جا سکتا اور وقت بھی میرا پورا ہوا چاہتا ہے، لیکن میرے سامنے اسلاف کے کردار کا ایک ٹھاٹھے مار کا سمندر ہے۔ ہائے ہائے کیا عشق عطا کیا تھا،
हजरत गंगोही के पास कोई आया, कपड़ा लेकर के कहा कि ये मदीना से लाया हूँ। दूसरे किसी ने कहा हजरत मदीना में कोई कपड़े नहीं बनते हैं, ये तो बाहर की फैक्ट्रियों में बन करके जाते हैं और मदीना के नाम पर ला करके लोग भेजते हैं हाजी लोग और धोखा देते हैं आपको। फरमाया रब्बे काबा की कसम, जिसको मदीना की हवा लग गई है उसके मुकाबले में दुनिया का कोई कपड़ा नहीं हो सकता है। हजरत खजूर बांटने लगे और एक आदमी को थोड़ी सी आई, एक ने कहा हजरत ये हकीर सी है, इसके ऊपर क्या ये थोड़ी सी? फरमाया दफा हो जा, मुझसे दूर हट, तू मदीने की खजूर के टुकड़े को हकीर कहता है, तुझे शर्म नहीं आती? और खजूरों के टुकड़े रख लिए, गुठलियां रख ली और उसको कूट लिया। फरमाया सुबह को थोड़ी देर फक्की मार लेता हूँ, मज़ाक़े मदीना की याद आ जाती है। आखिरी वक्त में बूढ़े हो गए, आंखों में सुरमा फेर रहे, सराई फेरते हैं। लोगों ने कहा हजरत सुरमा तो बिनाई के लिए होता है, बिनाई तो जाती रही, अब सुरमा लगाने से क्या फायदा? फरमाया सुरमा बिनाई के लिए नहीं था, ये मोहम्मद मुस्तफा की मुस्तफाई के लिए था। वो तब भी थी जब बिनाई थी, अब भी है, मैंने तब भी रब्बे काबा की कसम कभी सुरमा बिनाई के लिए नहीं लगाया, मैंने सुन्नत के लिए लगाया, आज भी इसीलिए लगाता हूँ। हाय वक्त साथ नहीं देता, घड़ी की सुइयां तेजी से दौड़ती हैं। बस मैं आखिरी बात कहता हूँ, दिल का उम्मतुल कद खलत लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम वला तुसअलून अम्मा कानू यामलून। और मेरी जमात के साथियों, मैं आज सुबह से ये बार बार कह रहा हूँ और तीसरी मरतबा आपसे कह रहा हूँ, अपने अकाबिर की मौजूदगी में कहता हूँ और इस सारे मजमे से कह रहा हूँ। कुरान ने कहा, यहूदी कहते थे कि हमारे बड़े बहुत बड़े थे, हम पीरों और पैगंबरों की औलाद हैं। कुरान ने कहा झूठे हो, दिल का उम्मतुल कद खलत लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम। वो एक जमात थी अंबिया की, वो एक जमात थी बुजुर्गों की, वो एक जमात थी वलियों की, वो गुजर चुकी है। लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम, उनको वो मिलेगा जो उन्होंने कमाया, तुमको वो मिलेगा जो तुमने कमाया। मेरे साथियों, आज कमजोरी यही है, हम कहते कासिम नौरोत भी ऐसे आशिक रसूल थे कि मदीना में जूती नहीं लगाई और पाँव जख्मी से तरबतर हो गए, जख्मों से तरबतर हो गए। लेकिन फरमाया नहीं, मेरा दिल नहीं मानता है कि मेरे हबीब के जहाँ मुकद्दस पाँव लगे हूँ वहाँ कासिम का जूता लगे, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। लेकिन आज हमारा अमल, हमें इस अमल का क्या फायदा? हमारे काम तो हमारा अमल आएगा। मेरे साथियों, आज अहद करके उठो, अज़्ज़ु अलैहा बिन नवाजिज़, हम सुन्नतों को अब सीने से लगाएंगे, सुन्नतों से चिमटेंगे। हमसे सुन्नतें छीनी जा रही हैं, सूखे और खोखले नहरे रह गए हैं, बस खाली कि ये पिंदरम्मा सुल्तानपुर हमारे बड़े इतने बड़े थे, ऐसे थे वैसे थे। लोग हमको देखना चाहते हैं, कौन अशरफ अली का तर्जमान है, कौन नशीद अहमद गंगोही का तर्जमान है, कौन खलील अहमद सहारनपुरी। और मैं आपसे कहता हूँ, यकीनी तौर पर आप उनके तर्जमान, यकीनी तौर पर मैं और आप उनकी औलाद, यकीनी तौर पर रूहानी औलाद है उनकी, उनके जानशीन हैं। उठो और साबित करो कि हम सुन्नतों से समझौता नहीं करेंगे। यही इश्क़ मुस्तफ़ा है। मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी हरम तशरीफ ले गए, हज के लिए तशरीफ ले गए, बड़े दर्द के साथ कहना पड़ता है। आज है बहुत सारे लोग सुन्नतों की रट लगाए हुए। मुझे हरम में भी एक मिला कि आपने ये काम नहीं किया, मैंने कहा आपने बड़े काम कर लिए। कहने लगे कि जनाब ये भी सुन्नत है। मैंने कहा तुम तो सारी सुन्नतें डकारते जा रहे हो और इंतजामिया को उसके लिए आलात फराहम कर रहे हो और उनकी हिमायत कर रहे हो इन मसाइल में। सुन्नत थी 8वीं ज़िलहिज्जा को सूरज निकलने, सुबह के बाद मक्का से निकलना, हाजियों को रात को निकाला जा रहा है और तुम तमाशा देखते हो, तुम्हें मौलवी कहते लोग। और फिर सुन्नत है कि सूरज की शुआएं देख कर के बिना से आदमी अरफात निकले, लोगों को रात को निकाला जाता है और तुम तमाशा देखते हो। मेरे आका की सुन्नतें ज़िबा की जा रही हैं, तुम तमाशा देख रहे हो। सुन्नत है कि मुज़दलिफ़ा में लोग आए और रात को यहाँ ठहरे और वाजिब है चारों इमामों के नजदीक और इनके नजदीक भी वाजिब था कि मुज़दलिफ़ा में गलस में फजर की नमाज पढ़ें और उसके बाद सूरज निकलने तक यहाँ दुआएं करें और उसके बाद यहाँ से कूच करें। लोगों को रात को निकाला जा रहा है और तुम इसका तमाशा देख रहे हो। मैं उसका रूहानी बेटा हूँ जो मियाँ में थे। हजरत मौलाना
खलील बिन सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह, वो ऊँटों का जमाना था, अभी गाड़ियां नहीं आई थी। इस वक्त के जिसको मुअल्लिम कहते, उस वक्त में मुतव्विफ कहते थे, वो आया और अभी सहरी को हजरत दुआ कर रहे थे और मशगूल थे अपने मालिक के साथ। उसने कहा हजरत जल्दी चलिए, जल्दी चलिए, फिर अरफात में जगह नहीं मिलेगी, ऊँट वाले तैयार हो गए हैं। फरमाया यहाँ से सूरज की शुआएं देखने के बाद सुन्नत है निकलना। तो कौन आया बीच में इबादत में खलल डालने वाला? उसने कहा ऊँट वाले जा चुके होंगे, फिर आप क्या करोगे? फरमाया जो मेरा रब चाहेगा वो करूंगा, मैं सुन्नत को नहीं छोड़ सकता हूँ। उसने कहा अजीब मौलवी हैं आप, आपका फर्ज छूट जाएगा अरफात में ठहरना, तो क्या आप फर्ज क्यों सुन्नत की वजह से फर्ज को कुर्बान करूंगा? कहा तू कोई मेरा पीर और मुर्शिद और मेरा उस्ताद नहीं है कि तू मुझे कुरान और हदीस समझाए, तू मेरा मुलाजिम है, मैंने तुझे इसके लिए पैसे दिए हैं, कुरान और हदीस मैं तुझे समझाऊंगा। हम फर्जों की वजह से न सुन्नतों को ज़िबा करेंगे, न सुन्नतों की वजह से फर्जों को छोड़ेंगे। हम हर एक फर्ज को सुन्नत के मुताबिक अदा करेंगे। अगर सुन्नत के मुताबिक अदा होगा वो फर्ज अल्लाह के यहाँ कबूल होगा, और जो सुन्नत के खिलाफ होगा खिलाफे पैगंबर कसेरा गुज़ीर, ये हर किस मंजिल ना खाहद रसीद। साथियों, मैंने दर्द दिल सामने रखा और आपके लिए नहीं, अपने लिए रखा। लोग हमको देखना चाहते हैं ये कितने सुन्नतों पर कायम है, और अल्हम्दुलिल्लाह 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 ये उम्मत बाज नहीं है। आज भी उम्मत की कोख से अल्हम्दुलिल्लाह वो जवान पैदा होते हैं। एक जवान को इंटरव्यू देना था बड़ी पोस्ट के लिए, मेरे सामने की बात है, दाढ़ी लंबी थी, उसके बाप ने पहले उसकी थोड़ी पकड़ी कि आज दाढ़ी कटा दे हैं, और अजीब अल्फाज से हमारे इस बारे में कहता है अपनू कहा है आप पे बंद हो जाए वो। उसने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। उसके बाद उसके पैर पकड़ लिए इस सुन्नत को ज़िबा करने के लिए। उसने कहा मैं ऐसी नौकरी पर थूकता हूँ जो मुझे सुन्नतें ज़िबा करके मिलती है। और बाप ने उसको चिढ़ाया था, उसकी वजह से इतना बड़ा पकड़ भी बांध कर गया, और वो भी काला बांध करके गया, और अल्लाह ने करम किया वो पगड़ी ही उसकी नौकरी का जरिया बन गई। उससे उसके मसले के बारे में बात होने तक बात ही नहीं आई। उसको यही पूछा ये क्या चक्कर है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन बच्चियों को जानता हूँ जाती तौर पर जिनको पर्दा करने के ऊपर उनके वालिदैन ने मारा, उनके बाप ने मारा और उसके भाई ने मारा, और छोड़ो माँ और बाप को, सबसे मेहरबान माँ ने उसको बोरी में बंद करके मारा। उसने कहा मैं सुमैया की वारिस हूँ, मेरी माँ मैं तेरी वजह से हबीब किबरिया की सुन्नत नहीं छोड़ सकती हूँ। मैं साद इब्ने वक्कास की वारिस हूँ जिसने अपनी माँ को कहा था, माँ ने कहा मैं खाना नहीं खाऊंगी, सर नहीं धोऊंगी और धूप से अंदर नहीं जाऊंगी जब तक तू मोहम्मद का दीन नहीं छोड़ेगा। उसने कहा तू एक मरतबा क्यों मरता है, 1000 मरतबा मर और फिर जिंदा हो। मैं तेरे मरने से डरता नहीं हूँ, जिसका पल्ला पकड़ चुका हूँ उसको छोड़ नहीं सकता। मैं क्यों इतना जोर दे रहा हूँ, इसलिए कि जो भी खूबसूरती के सांचे और ढांचे थे वो हबीब किबरिया पर खत्म हो गए। खुदा की कसम और रुख मुस्तफा वो आईना है, अब ऐसा आईना न हमारे ख्याल में आ सकता। और बुखारी के अल्फाज में कहिए कि न दुकान आईना साज में परवरदिगार ने वो सांचे तोड़ दिए जिनसे मुस्तफा को बनाया गया था। अब वो सांचे बाकी नहीं, अब वो खूबसूरत लगेगा जिसका चेहरा मोहम्मद मुस्तफा की तरह होगा। वो अच्छा लगेगा जिसकी जिंदगी उनकी तरह होगी, और जो उनसे हटकर कहेगा कि ये मेरा कल्चर है, ये मेरी तहजीब है, मैं किसी और तरीके पर चल रहा हूँ, वो इस कौल की मुखालफत कर रहा है जो आखिरी हज पर आपने फरमाया था तहता कदमी यहादा, मैंने तमाम तहजीबों को, तमद्दुनों को और दौरे जहालत के तमाम रस्म और रिवाज को अपने पांव के नीचे मसल दिया है। फिर अर्ज करता हूँ कहें हम के फलां बिदअत कर रहा है। मुफ्ती साहब ने कहा इल्मी तहकीक पेश करे, मगर जरूरत इसकी है कि हम सुन्नत पेश करें, इसलिए कि हमसे कब्र में हमारा सवाल होगा, हमसे पूछा जाएगा न कर इधर उधर की बातें, ये बता काफिला क्यों लुटा, मुझे रहज़नों से गरज नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।